کراچی میں عوام کو سفری سہولیات کی بہتری کے لیے احسن اقدام، خواتین کے لیے مختص پنک بسوں پر خواتین ڈرائیورز کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دایو کہتے ہیں کہ چند روز میں خواتین ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا جائے گا۔ خواتین ڈرائیورز پنک کے علاوہ دیگر سروسز کی بسیں بھی چلائیں گی۔ عادیہ ناز کی رپورٹ۔ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اور احسن اقدام سامنے آ گیا۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس کی سہولت کے بعد اب خواتین ڈرائیورز بھی رکھی جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں اور اب یہ ثابت ہونے جا رہا ہے کہ ایسا صرف کہا نہیں جاتا بلکہ عملی طور پر بھی ہوگا۔ ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دایو نے سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ ہم شہر بھر سے 30 خواتین ڈرائیورز بھرتی کریں گے جو کہ صرف پنک بسیں نہیں بلکہ ہماری دیگر سروسز کی بسیں بھی چلائیں گی۔ ہمارا جو انیشیٹو ہے وہ ہے وومن ڈرائیور کو ٹرین کرنا، پھر ان کو ہم اس میں پنک بس سروس میں لیں یا کسی اور سروس میں۔ ہمارے پاس ہمارا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹو کہ ہمارے پاس ایک اسکلڈ ورک فورس آ جائے گی، پھر اس کو کہیں پہ بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ کمال دایو کا کہنا تھا کہ ہم آئندہ چند روز میں اخبارات میں خواتین ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے اشتہار دینے جا رہے ہیں۔ خواتین ڈرائیورز کو 3 ماہ کے عرصے میں موٹر وے پر گاڑی چلانے کی ٹریننگ دی جائے گی۔ ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ نے بتایا کہ خواتین اگر ایف اے پاس یا بی اے پاس ہیں تو بھی ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ دے سکتی ہیں۔ فیصلہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد ہمراہ، عادیہ ناز، سٹی 21۔ اسکول اراضی پر قبضے، پانی کی عدم فراہمی اور لاپتہ افراد کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت۔ عدالت کا بد انتظامی پر اظہار برہمی۔ جرمن اسکول اورنگی ٹاؤن کی 1 لاکھ مربع گز زمین پر قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ ڈی ایچ اے اور کلفٹن نے پانی کی عدم فراہمی پر سی ای او واٹر بورڈ کو رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا۔ ریمارکس یہ کہ پانی نہیں دے رہے تو پیسے کیوں لیتے ہو؟ عدالت لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر پولیس اور محکمہ داخلہ پر برہم۔ جرمن اسکول اورنگی ٹاؤن کی 1 لاکھ مربع گز زمین پر قبضے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی تو سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے ایم سی کو قبضے ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ صوبائی حکومت نے قبضے ختم کرانے سے متعلق آپریشن کی نگرانی کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے جعلی لیز کے ذمہ داران کے خلاف انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ڈی ایچ اے اور کلفٹن میں پانی کی عدم فراہمی کا کیس میں عدالت نے سی ای او واٹر بورڈ کراچی کو رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا۔ کراچی واٹر بورڈ کے چیف انجینئر اور سی ای او کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کو بھی طلب کر لیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ پانی نہیں دے رہے تو پیسے کیوں لیتے ہیں؟ واٹر چارجز دینے والے ٹینکر کی رقم ادا نہیں کریں گے۔ عدالت نے مزید سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی تو 11 سال سے لاپتہ شہری علی کی اہلیہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئیں۔ کہا آخر کون سا جرم ہے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ خاتون کے بیان پر عدالت نے پولیس اور محکمہ داخلہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے ایس پی رینک کا افسر مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے کہ 11 سال تک لاپتہ شہری کا سراغ نہیں لگا سکتے تو کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عدالت نے آئی جی اور دیگر کو لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے پولیس اور تحقیقاتی اداروں سے کو رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ناقص حکمت عملی، 60% سے زائد درسی کتابوں کی چھپائی نہ ہو سکی۔ بورڈ کی بد انتظامی سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ کتابیں اردو بازار سمیت مارکیٹ سے نایاب ہو گئیں۔ صوبائی وزیر تعلیم بھی بک بورڈ کے عمل پر خاموش تماشائی۔ تعلیمی عمل بری طرح متاثر، طلبہ اور والدین پریشان۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ نیا تعلیمی سال شروع ہونے پر بھی طلباء و طالبات کو کتابیں نہ مل سکیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں مجموعی طور پر 60% سے زائد درسی نصاب کی کتابوں کی چھپائی نہ ہو سکی۔ اردو بازار کے دکاندار کہتے ہیں کہ پہلے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی کیمیا کی بک نہیں مل رہی تھی اور اب مطالعہ پاکستان کی غائب ہے۔ کبھی اردو ایڈیشن شارٹ ہو جاتا ہے تو کبھی انگریزی۔ یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ زیادہ میٹرک کی کتابیں شارٹ ہیں، کس ایک کتاب آتی ہے دوسری کتاب شارٹ ہو جاتی ہے۔ بیچ میں کیمسٹری شارٹ تھی نہ میٹرک کی، اب پاکستانی اسٹڈی شارٹ کر دی۔ یہ پیرنٹس کے لیے بڑا ایشو ہو جاتا ہے، پورا کورس ملنے کے باوجود بھی بیچارے ایک 2 کتابیں چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی میں بچوں کو پڑھانا پہلے ہی مشکل ہے، ایسے میں کتابوں کی عدم دستیابی نے مزید مشکلات بڑھا دی ہیں۔ سندھ بورڈ کی جو بکیں وغیرہ اویلیبل تو مل بھی نہیں رہی ہے، مل بھی رہی ہے تو اتنی مہنگی مل رہی ہے
एक एक बुक 3,500 4,000 हज़ार रुपए की, और इनके रेट है 2,500 2,000 रुपए। मसला ये है कि भाई यहाँ तो ना तो किताबें पब्लिश हुई हैं, ना किताबें छपी हुई हैं, ना कहीं किताबें मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं वो इस प्राइस में मिल रही हैं कि आदमी खरीद से बाहर है। यहाँ अगर हमारे तो सुनने में भी ये आता है कि जी बहुत बड़े बड़े स्टोरों के अंदर जो है वो किताबें जो है वो डंप कर दी जाती हैं, और यहाँ जब मार्केट के अंदर बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए आए तो पता लगता है कि 3 किताबें मौजूद हैं, 4 नहीं हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को दरसी निसाब की किताबों की छपाई में तेजी लानी होगी ताकि तुलबा व तालबात को किताबें मुहैया हो सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस अमराज फूट रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर इन्फ्लुएंजा के केसेस सामने आने लगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम में नमी के बायस बीमारी बढ़ रही है। कराची में OPI पॉइजनिंग के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, जिन्हें अस्पताल में 7 मरीज दाखिल हैं। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। कराची में मौसम की तब्दीली बीमारी में इजाफे का सबब बनने लगी। शहर में इन्फ्लुएंजा के केसेस में इजाफा हो गया। जिन्ना अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज लाए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए जिस्म में दाखिल होता है और नाक, गले और फेफड़ों को मुतासिर करता है। तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल जरूरी है ताकि जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त ज्यादा मजबूत हो जो इस वायरस को खत्म कर सके। मौसम चेंज होता है तो वायरल इलनेसेस जो हैं वो पीक पे चली जाती हैं। इनके लिए बस थोड़ी सी आपको प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। अपनी डाइट अच्छी करनी है, जैसे कि आजकल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे फ्रूट्स हैं, उनको इंटेक अच्छा रखना है। साथ ही आपने अवॉइड करने ऐसी जगहें या ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग बीमार हैं, उस जगह पे आप मास्क का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को भी मोहतात रहने की हिदायत की। बताया कि इन्फ्लुएंजा का शिकार अफराद के खांसने, छींकने से वायरस मजीद फैल भी सकता है। एंटीवायरल से इन्फ्लुएंजा का दौरानिया और पेचीदगी कम की जा सकती है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ने फेलो और मेंबरशिप के लिए सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को तस्लीम कर लिया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं कि सेहत के शोबे बेहतर करना PP का मंशूर है। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। सेहत के शोबे की जानिब सिंध हुकूमत का जाते जाते भी बड़ा इक़दाम। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर इम्तियाज शेख ने कहा कि जैकबाबाद से कराची के दरमियान ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं, शिकारपुर में भी ऐसा मरकज बनवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों ने मुझे बताया, ऑल डिविजनल हेडक्वार्टर्स आर बीइंग कनेक्टेड विद दिस फैसिलिटी एंड इन कमिंग ईयर्स एंड कमिंग टाइम ये बहुत डेवलप हो जाएगा। तो फिर वहाँ से इधर लाने में अनटिल अनलेस कोई इस तरह का पेशेंट है जो कि ज़रूरत है इसको इस फैसिलिटी की, नॉर्मली इट विल बी ट्रीटेड इन द डिविजनल हेडक्वार्टर्स। मैंने तो अपने शिकारपुर ज़िले के लिए भी डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, वहाँ भी मैं ट्रॉमा सेंटर बनवा रहा हूँ पार्कों की हेल्प से। इम्तियाज शेख ने ये भी कहा कि सेहत के शोबे में काम करना PP का मंशूर है। ऐसे मराकज़ आवाम के लिए रहमत हैं। जो हेल्थ फैसिलिटी है ये हो और या सिंध में आपको बेतहाशा मिलेंगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक विजन है फॉर द फ्री हेल्थ केयर सिस्टम फॉर द पब्लिक, अवाम के लिए। इस मौका पर ट्रॉमा सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन ने कहा कि हमारा मिशन आला पेशा वराना खिदमात फराम करना है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। 29 महकमों में 762 फौदगी कोटे पर 1 से 4 ग्रेड तक नई भर्तियां। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में अमल दरामद कमेटी ने मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन में 294, वर्क सर्विसेज में 46 मुलाजमतों की मंजूरी। बल्दियात में 61, पॉपुलेशन वेलफेयर में 14 मुलाजमतों की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत फौदगी कोटे पर अमल दरामद के हवाले से इजलास हुआ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्लाह उनर, सेक्रेटरी सर्विसेज सैयद खालिद हैदर शाह, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच, चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में महकमा स्कूल में 294, महकमा सेहत में 93, बल्दियात में 61 नई भर्तियां होंगी। वर्क सर्विसेज में 46, महकमा कॉलेज में 32, महकमा ज़राअत में 28 मुलाजमीन भर्ती होंगे। बहबूदे आबादी में 14, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 13, रेवेन्यू में 12, महकमे जंगलात और मवेशियों माहिगीरी में 11 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुहेल ने बताया कि फौदगी कोटे पर 2018 से अब तक 13,000 सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुलाजमतें दी गई। महकमे कानून पॉलिसी ड्राफ्ट तमाम महकमों से शेयर करे। कोटे पर पॉलिसी को दोबारा से देखा जाएगा। नई भर्तियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नई भर्तियों से रोक दिया। मुलाजमतों से मुतालिक जारी मुख्तलिफ
महकमों के इश्तिहारात को भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को 30 अगस्त के लिए जारी कर दिया। इटारसी में गोदामों से 8 करोड़ रुपए के चावल की चोरी का इंकशाफ। मुकदमे में नामजद 8 में से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कंपनी ने मुकदमे में अपने मुलाजमीन को नामजद किया। पुलिस हुकाम ने दीगर फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। फरीकैन में 9 साल बाद समझौता। हाई कोर्ट ने सुलेमान लाशारी कत्ल केस का फैसला सुना दिया। पुलिस अफसर के बेटे सलमान अबड़ो समेत दीगर मुलजिमान बरी। अदालत का मुलजिमान को जेल से रिहा करने का हुक्म। एसएसपी सांगड़ के बेटे सलमान अबड़ो के खिलाफ सुलेमान लाशारी के कत्ल का मुकदमा दर्ज था। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा। एक अमेरिकी करेंसी की कीमत डॉलर 287 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये 75 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी 47,808 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। अमेरिकी करेंसी की कीमत डॉलर 287 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये 75 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी 47,808 पर बंद हुआ। सीपैक की 10वीं सालगिरह पर मरकजी बैंक का एहसान इकदाम। स्टेट बैंक ने 100 रुपये का यादगारी सिक्का तैयार कर लिया। सिक्का गोल शक्ल में है जिसके किनारे पर सिरिंज है। सिक्का कल बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के एक्सचेंज काउंटर के जरिए जारी किया जाएगा। सीपैक की 10वीं सालगिरह पर मरकजी बैंक का एहसान इकदाम। स्टेट बैंक ने 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी कर दिया। सिक्का गोल शक्ल में है। सिक्का कल बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के एक्सचेंज काउंटर्स के जरिए जारी किया जाएगा। मलेशिया के कौंसल जनरल ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन हरदेंता अहमद ने काठी के दौरे के मौका पर कहा कि दोनों ममालिक के तालीमी इदारों के दरमियान रवाबित में बेहतरी से तालीम के मैदान में बेहतरी और तलबा के लिए मौक़ों में इजाफा लाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मलेशिया में गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत की मांग है। दोनों ममालिक के तिजारती वफूद के तबादले से मुश्तरका तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। मलेशिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं जिनकी अक्सरियत IT माहिरीन, डॉक्टर्स और तलबा पर मुश्तमिल है। मलेशिया में ग़ज़ाई अजनास इम्पोर्ट होती हैं जिससे पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से गोश्त, चावल और नमक बरामद की जा सकती है।